Good morning, my dear student. How are you all? So, I think you all are keeping well. So, we were doing our unit number 3, that is values and data types. Okay. So, the next topic in this chapter is data types in Java. How many type of data types are present in Java? So, what are data types? So, data types are the values which define what type of data is going to be स्टोर इन दैट. डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप का डेटा ये पर्टिकुलर वेरिएबल इज गोइंग टू hold. Okay, so basically we have two types of data type. First we have primitive data types and then we have non-primitive data type. Primitive data type, what are primitive data types? So primitive data types are the data types which are inbuilt or defined by the Java compiler. Means what they do will be already defined and stored in Java library. So these are inbuilt data types. Okay, so predefined also we can say, already defined by the Java compiler. So these are primitive data types. Okay, what are non-primitive data types? Non-primitive data types are the data types which are not defined by the Java compiler and the user according to its need used to declare them. And these non-primitive data types are actually derived from primitive data types. ये primitive data types से ही बने हुए हैं. Primitive data types वो data types होते हैं जो पहले से defined हैं जावा लाइब्रेरी में, उनका सारा मीनिंग. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़र अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है, बट दे आर ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम, ये इसी से बने होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम primitive data type. So now let's see what type of primitive data types we have in Java. So first we have numeric data type. Numeric data type means नंबर्स. सो नंबर्स या तो इंटीजर होंगे या फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे. ठीक है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? या तो इंटीजर होंगे या फिर फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे. तो जो इंटीजर्स हैं वो कैसे होते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. ठीक है, सारे अलग अलग हैं. देन वी हैव फ्लोटिंग डेटा टाइप. फ्लोटिंग डेटा टाइप मीन्स डबल एंड फ्लोट. ओके, जो छोटा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है विल स्टोर इट इन फ्लोट. जो बड़ी लार्ज डेसिमल वैल्यू है विल स्टोर इट इन डबल बिकॉज इट्स साइज इज लेस देन double. Similarly, the smaller data type will store in integer, the longer data type will store in long. Next we have non-numeric data type, means to store a non-numeric datas. So we have characters and boolean. Characters is also a single word, single character. ठीक है, single character included in a enclosed in a single quotes are known as character. Boolean, there is only two values, either true or false, 0 and 1, or true or false. Next we have non-primitive data type. So non-primitive data type means string, array और user defined classes. Structures भी होते हैं इसमें. ठीक है, so string means more than one character when enclosed in a double quote, so it is treated as string. Array means number of variables of same kind. ठीक है, और user defined classes that we will discuss in detail, okay, in the next chapter. So let's see. This is a very important chart. Primitive data types in Java. So I told you these are the primitive data types. ठीक है, primitive data types and these 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is their size. कितना साइज है उनका, कितना वो स्टोर कर सकते हैं, उनके डिफॉल्ट वैल्यूज और टाइप ऑफ वैल्यू दे स्टोर. सो बाइट सबसे फर्स्ट है बाइट. इट विल, इसका साइज है सिर्फ 1 बाइट. 1 बाइट मीन्स 8 बिट. इट विल स्टोर ओनली 1 बाइट और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0. मीन्स अगर हम उसे कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो 0 वैल्यू ले लेगा. ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है. शॉर्ट है, उसका साइज है 2 बाइट्स. 2 बाइट आपको पता है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 8. सो 8 टू जा 16 बिट. ये भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है. जो बहुत छोटा डेटा होगा हम बाइट में स्टोर कर सकते हैं, उससे बड़ा शॉर्ट में, फिर इंट में, फिर लॉन्ग में, अकॉर्डिंग टू आवर नीड. ओके, suppose we need a very small data of integer type, so it is a good programming practice that we should not store it into a long data type. क्यों?
उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, मगर क्या डिफरेंस हो जाएगा, लॉन्ग मीन्स 8 बाइट ऑलरेडी स्टोर कर लेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी में, जबकि उसको ज़रूरत सिर्फ 4 बाइट की थी, वो एक इंटीजर वैल्यू था, आपने उसे लॉन्ग में स्टोर कर लिया, सो इट विल टेक 8 बाइट, सो क्या होगा, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ओके, ठीक है। सो ओ इट इज़ ऑल्सो टेक डिफॉल्ट वैल्यू ओ, एल है तो समझ जाएंगे कि वो लॉन्ग टाइप का डेटा है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। नेक्स्ट है करेक्टर, 2 बाइट इसका साइज है। कोई भी चीज अगर सिंगल कोट्स में सिंगल करेक्टर होगा, ठीक है, व्हेन इनक्लोजेस इन अ सिंगल कोड, सो इट इज ट्रीटेड बाय अ कंपाइलर एज अ करेक्टर, ये एक करेक्टर लेता है। नेक्स्ट है फ्लोट, 4 बाइट है और इसी का बड़ा साइज है डबल, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए होते हैं। अगर डेसिमल वैल्यू छोटी है तो हम उसे फ्लोट में स्टोर करेंगे, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0 और स्मॉल एफ से हम उसे डिनोट करते हैं, डेसिमल वैल्यू लेता है। डबल है तो बड़ी वैल्यू है तो हम उसे 8 बाइट में स्टोर करेंगे, तो 0.08। अभी जैसे हमने इंटीजर और लॉन्ग के लिए बताया, तो उसी तरीके से यहाँ है, अगर कोई डेटा टाइप floating point value है and its size is bigger and if you store that variable in float, so what will happen in that case, यहाँ पे तो मेमोरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू थी, आपने उसको छोटे में सेव कर दिया तो उसको पूरा नहीं आ पाया वहां पे, तो बची हुई वैल्यू क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट बुलियन, ये 1 बिट लेता है, ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और ये या तो ट्रू होती है या फॉल्स, दो ही वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, यू हैव टू एटलीस्ट लर्न ऑल दीज size of all the primitive data types, it's very very important, again I'm telling you। okay, next topic we have type conversion in Java, ठीक है। so what are the type conversion in Java, so that we will discuss in the next video। okay।